तो मैंने सोचा अपने दिमाग में कि मैं अपने नाम के आगे रॉयल लगाती हूँ, शायद मैं कुछ लाइफ में बन जाऊँ तो माई डैड विल फील दैट ही गॉट वॉट एवर ही लॉस्ट लाइक बैक. द वर्ड ट्रैवल, सो देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि हमें घर पे लेसन्स चाहिए, हमारे बच्चों को नर्सरी राइम सीखना है. तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो on my Activa after school. What was I doing when I was 14? नहीं, बीच में I was very serious about cricket. मैं कोचिंग पे भी जाती थी और I used to be a spinner, like leg spinner. पहले होता था कि इसी वाले बच्चे get out. जब मैंने कि on India's Got Talent, it was like कि हर house music, बेटा house music. But do you think that it has some way typecasted your music? I was in a band when I was in Delhi, but I was chucked out of my own band only. Also, what is the story about you not knowing who Karan Johar was? Were you performing in kitty parties and birthday parties after India's Got Talent as well? Yeah. Reality shows don't change your life. Like ऐसा नहीं होता कि वो you become a star. But it's almost as if music has chosen you. Oh, How wow. things You're have saying worked. such deep things today. तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर. Hey guys, it's me Prisha and welcome to Uncut. आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो शादियों में मौजूद ना होकर भी हर जगह मौजूद हैं. एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्हें जब आप UPI पेमेंट्स करते हो ना तब भी आप याद करते होंगे. आपको ज़्यादा गेस नहीं करवाते हैं क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना आप लोगों का पेशेंस इतना टेस्ट करने की. टुडे वी हैव द वेरी वर्सेटाइल, द स्टनिंग, self-made, a one-woman band, Jasleen Royal with us. Hi, Jasleen. Thank you so much for such an interesting intro. I'm glad you liked it. पता है मैंने बहुत सोचा अच्छा. कि कैसे मैं इतनी versatile personality को introduce करूँ, and this is the hardest part of the interview. Yeah, क्योंकि when you this have to is think about like introducing Yeah, people. It because- was lovely. Thank you so much. Starting में validation मिल गया मुझे. So how are you feeling today? Good, wired, tired. But let me tell you, you have this very cute and sweet vibe to you. Yeah? Yeah. Thank you. So Tell I- this to my family. I shall. क्या वो agree नहीं करते हैं इस बात से? There are days when they think I'm the hardest, but mostly, yeah. But you have to be hard when you are in this peak of life. There are days when you have to be hard. Yeah. And yeah, not everyone gets it, so it's okay. Yeah, can be little moody, like, but also because you are in the middle of so many things mentally. I'm working on a Yeah. song and so anyway, but it's all good. Like you started working when you were 14. Yeah. And we have been seeing you since that phase. जब आपका एक cute सा ऐसे baby cut होता था. I remember she used to be in that white t-shirt and shorts, Yeah. very candid, very confidently carrying herself. Yeah. So ये जो आपकी sweetness है, does it have to like do anything with your father having a bakery in Ludhiana? कुछ So actually मेरे डैड तो बिल्कुल केक और बिस्किट्स और कुछ भी नहीं खाते हैं. It's like वो हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता टाइप्स. आज तक नहीं Oxymoron. खाते. आज तक नहीं खाते हैं. But yeah, like मेरी जो हमारी जो बेकरी थी, that has played a huge role in me getting that surname Royal. A lot of people ask me कि Royal कहाँ से आया. So Yes. वो उस बेकरी से आया, which there's a story behind it, but yeah. We would love to hear that. क्योंकि रॉयल सबका सरनेम नहीं होता है. तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये स्टोरी तभी बताऊंगी जब मैं कुछ बन जाऊं लाइफ में. तो हमारी एक बेकरी थी इन लुधियाना. आई एम फ्रॉम लुधियाना, जो कि बहुत पॉपुलर थी इन इट्स टाइम. व्हेन आई वाज अ किड, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू रन इट. तो एक लैंडमार्क था अपने आप में कि रॉयल बेकरी. एंड माय डैड, एवरीबडी वाज नोन एज लाइक रॉयल 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 रॉयल. एंड माय डैड हैज़ 3 more brothers and they got separated and he lost out on the bakery. And तो उनको हमेशा से रहता था कि उनका कुछ छूट गया है. So when I was a kid, I used to see him and I could feel his sadness या कुछ the longing. तो मैंने सोचा अपने दिमाग में कि मैं अपने नाम के आगे रॉयल लगाती हूँ, शायद मैं कुछ लाइफ में बन जाऊँ तो my dad will feel that he got whatever he lost like back. So that was the intention behind it, and yeah. That is such a thoughtful thought to be. I don't know what to say. Like you mentioned, you were a kid.
और उस टाइम पे जहाँ लोग यूजुअली खिलौनों से खेलने में बिजी होते हैं, यू कैच्ड दैट रॉ इमोशन ऑफ योर फादर, जो आजकल के बच्चों में काफी ज्यादा लैग करता है। और आपने 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर जी। दिया था, तो इतनी जल्दी क्या थी? तो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो जैसे होता है व्हेन यू ग्रोइंग अप, पहले मेरे को क्रिकेट का शौक था, फिर कभी स्केटिंग का शौक था, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एज अ किड यू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स आउट। तो आई रियलाइज इट यूज टू क्रिएट अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स कि Okay. कितनी कितनी बार चीज़ें ला के देंगे। तो जब व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड कि मेरे को म्यूज़िक में ही जाना है, म्यूज़िक कंपोजर बनना है, एंड इट्स नॉट अ cheap hobby. You need like proper keyboards, you need to attend lessons, you need a guitar. Like instruments are only very expensive. So then I thought, so I asked my teacher like if I can somehow be of any help. He used to have a lot of batches, तो मैंने उनके कि मैं कुछ करके मैं उनको उनके batches को beginners lessons दूँ। मैं थोड़ी एडवांस लेवल पे जब पहुंच गई थी, ताकि मेरे को पे नहीं करना पड़े अपनी फी। तो वैसे करते करते द वर्ड ट्रैवल, सो देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि हमें घर पे लेसन्स चाहिए, हमारे बच्चों को नर्सरी राइम सीखना है। तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो ऑन माई एक्टिवा आफ्टर स्कूल। कभी मेरी खुद की क्लास होती थी, फिर मेरी बीच में ट्यूशन्स होती थी, खुद पढ़ाई जो करनी होती थी। फिर कुछ बच्चों को मैं सिखाने जाती थी नर्सरी राइम्स। एंड देन देयर वाज दिस वन लेडी हु 50 years old who just wanted to learn Christmas carols from me. So I would like start in the day at 6 a.m., leave from my house for school, and then come back like around 9-10 p.m. सब कुछ करते 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 it was fun. तो that's how I started working at 14, and then I started saving money. फिर मैंने उस पैसे सेव करके फिर एक बड़ा सा कीबोर्ड लिया, फिर एम्पलीफायर लिया, फिर गिटार लिया। एंड देन आई वाज लाइक अब मुझे लुधियाना से बाहर निकल के दिल्ली जाना है टू गेट मोर एक्सपोजर, बिकॉज आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय म्यूजिक। 14 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ सोच लिया, कर लिया, चला लिया। What was I doing when I was 14? I don't know. I don't want to recall also. मेरा teenage era इतना खास नहीं रहा है. But moving on from that, you mentioned that you love cricket. या And so were you like passionate about it, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका कहने का मतलब होता है if I love cricket, I love seeing विराट कोहली on the screen. तो ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बीच में आई वाज वेरी सीरियस अबाउट क्रिकेट। मैं कोचिंग पे भी जाती थी, और मैं आई यूज्ड टू बी अ स्पिनर, लाइक लेग स्पिनर। Okay. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट इतना सब कुछ चल रहा था, म्यूजिक भी, ट्यूशन्स भी, क्रिकेट कोचिंग भी। तो आई हैड टू चूज कि क्रिकेट या म्यूजिक। देन आई चूज म्यूजिक। और मैं बॉलिंग ही करती थी क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है, और यूजुअली सबको बैटिंग करनी होती है, तो मेरे को सिर्फ बॉल देता I था। know where this is going. I know. Yeah. तो बड़े इसलिए बड़े भाई कभी किसी को बैटिंग हाँ, नहीं नहीं करने देते। देते, और बैट देते But भी then हैं I fell in love with bowling then. I would keep practicing when there was nobody, like wickets लगा के I used to practice every afternoon. तो अच्छा लगता था, I used to love it. I don't know why I have a feeling that you're very adaptive, कि अगर कुछ छोटा भी दे देंगे ना, you'll make something big out of that, because अच्छा, you'll start that's a very loving big that. compliment. Thank you. Yeah, like, so who's your favorite cricketer right now? Is there any? Are you like following IPL या कुछ? My favorite cricketers are Dhoni. I absolutely love him, and also Smriti Mandhana and Yeah. Harmanpreet Kaur. They're doing such fabulous. Exactly. और इस jobs. साल तो उन्होंने वो कर दिखाया है जो आरसीबी के लड़के कितने टाइम से नहीं कर पाए. So yeah, that's good to know. And then you also mentioned कि आप DU आपने पढ़ाई करी है अपनी. Yes. आप दिल्ली आ गए हाँ जी. अपनी पढ़ाई लुधियाना से करके. तो दिल्ली का जो एक सर्किट रहता है ना कॉलेज का, that DU fever, it's different altogether. So how was those 3 years for you? What were you really doing? क्या सही में जाते थे कॉलेज, या फिर बैक एंड पे सिर्फ प्रैक्टिस चलती थी? तो मैं ऑब्वियसली आई वाज फैसिनेटेड बाय द होल DU कल्चर, और मेरे को लगता था कि यहाँ पे बहुत सीखने को भी मिलेगा। म्यूजिक, बैंड्स, द होल कल्चर इज वेरी इंटरेस्टेड इन। तो मैं बहुत पढ़ाई करके लास्ट सेमेस्टर में ही मैंने पढ़ाई की है पूरी जिंदगी में What अपने। course did you have? BCom honors Okay. at Hindu College. So in class 11 I was barely passing 45%, 46%, but मुझे था कि यहाँ से बाहर निकलना है तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। Then I got like scored 92% in my 12th, and I came.
आई वाज लाइक कि अब ऐसा किया तो कोई भी मेरे से नहीं पूछेगा कि क्यों जाना है, हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान. एग्जैक्टली. So I came to Delhi, and I was also an ECA quota student, extracurricular activity, क्योंकि मेरा 1% कम था. अच्छा. तो I anyway had to deliver like a lot of extracurricular activities पे on that front I had to deliver कि colleges में जाना है और festivals में जाना है, perform करना है, तो वो था. But I was not taken very seriously by my teachers. कि उनको लगता था ये बीकॉम ऑनर्स में क्यों आए हैं म्यूजिक वाले बच्चे. अच्छा. तो ऐसा बायस रहता था. बट माई गोल वॉज क्लियर कि मेरे को म्यूजिक में कुछ करना है. फिर इंडियाज गॉट टैलेंट हैपेंड व्हेन आई वाज इन क्लास लाइक फर्स्ट ईयर ओनली, एंड थोड़ा सा फेम मिला, थिंग्स चेंज, पीपल स्टार्ट टेकिंग मी सीरियसली. तो अटेंडेंस कम भी है तो कोई बात नहीं. तो You चलेगा. sound so cute while saying that. She still has that innocence. Like most people lose it once they have it all, but you still have that Thank touch you. word. Yeah. So अटेंडेंस कम भी है तो चलेगा. पहले होता था कि ये इसी वाले बच्चे गेट आउट. जब when I came on India's Got Talent, it was like हर हाउस म्यूजिक बेटा, हाउस म्यूजिक. अब तो वो हाँ बोलते होंगे अरे जसलीन हमने पढ़ाई है, हमारी बच्ची थी, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी. यार मेरी अटेंडेंस ही कम होती थी ना, तो मैं बोलती थी सर प्लीज प्लीज, लाइक ठीक है तुम म्यूजिक पे ध्यान ज़्यादा दो. एंड दे वर वेरी सपोर्टिव बाय द एंड ऑफ इट. आई एम सो हैप्पी. तो बहुत अच्छा था. एंड so Hindu college in Delhi gave me a lot of like exposure. I feel it gave me a head start when India's Got Talent happened. I got that little fame. Then one artist management company signed me on. तो फिर मैं बहुत सारी anniversaries, birthday parties, kitty parties में जाके perform किया. Then I saved up money from that to release my first single, Panchi Ho Jaaun. Were you performing in kitty parties and birthday parties after India's Got Talent as well? Yeah. After that only, like. After that only you got those You get gigs. that head start, na. Like Okay. reality shows don't change your life. Like ऐसा नहीं होता कि वो you become a star और Yeah. ऐसा नहीं. तो ऐसे लगता है कि अच्छा अब नाम जानने लगे थोड़े लोग, कुछ टाइम के लिए लोग जानने लगे हैं, और कुछ लोग आएंगे आपको, आपके साथ काम करेंगे, आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा. एंड देन इट डिपेंड्स व्हाट यू डू विद दैट. लाइक दैट्स व्हेन द रियल thing starts. That's when you have to really work on yourself. I have personally heard a lot of conspiracies around reality shows. मतलब जितना रियल वो दिखते हैं उतने वो रियल होते नहीं है. So what was your process like? Did you like enroll? Did you fill a form? फिर आप selection was it exactly like that? Everything. I remember I went to Amritsar and then I was called to Delhi, then to Bombay. तो पूरा एक process था. तब मुझे पता भी नहीं था ये टीवी पे आएगा शो. आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट. कुछ मैं बहुत सारे फेस्टिवल्स पे जाती रहती थी. अच्छा. तो वो फर्स्ट सीजन था इंडियाज गॉट टैलेंट का, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि हाउ बिग दिस इज गोइंग टू बी. बट इट बिकेम bigger and bigger with every round, and then it was on TV, and then I got so many calls and like fan pages and people calling me, and yeah, so that it worked out well for you. And you were also the semi-finalist, right? Yeah. That's nice. That's good to know. अभी जो लोग नहीं जानते थे ये बात, अभी ये फैक्ट वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो जाके पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं आप जसलीन के. तो when you finally got that power of recognition, जहाँ पे लोग आपको पहचानने लगे, when you started going out in public, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ मैटर करती होगी फेम उतना स्टार्टिंग में. बट जब ऐसा हुआ तो पहला रिएक्शन क्या था कि मैं इसमें क्या रिएक्ट करूँ? मतलब I have never taken that very seriously. अच्छा. It's good, like obviously feel happy अगर कोई आपको पहचानता है. तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मेरे को वो कॉलेज में अटेंडेंस का थोड़ा इशू कम हो गया था. प्रायोरिटीज. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फैन बस काट रहा है, कुछ कर रहा है, मेरी अटेंडेंस कम हो गई. दे वर लाइक कि कोई बात नहीं, कर लो थोड़ा. वो एक थोड़ी एक खुली छूट मिल गई थी कि ठीक है म्यूजिक कर लो जाके, लाइक वी टेक यू सीरियसली. तो वो बड़ा एक द प्रेशर, द लोड केम ऑफ. तो वो अच्छा था. एंड मतलब तब उससे पहले क्या था, आपके दिमाग में था कि आपको बनना है. पीपल वर लाइक हाँ ठीक है. मतलब आई रिमेंबर a lot of my friends also would make fun of me. Like even one of my best friends would say कि हाँ मतलब म्यूजिक में तो किसका क्या ही होता है ये है. तो तब तक आपके सिर्फ दिमाग में था. बट जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट से आपको थोड़ी सी भी एक एक्सेप्टेंस मिलती है ऑडियंस से, so it just boosts your confidence a little more. It gives you more willpower. It gives you more
strength to Yeah. just go for it. Yeah. So I think that was more important for me rather than like just enjoying that fame. Like the that I support. felt like that is an acceptance and I can go for it. It felt like okay, I'm allowed to dream that dream. Heavy हो गया था. That is good. और I think with time this scenario around artists have changed. जहाँ पहले बहुत लड़ना पड़ता था अपने पैशन के लिए, वहाँ finally things like content creation, things like singing or dancing, they're being taken seriously. अब एक जो artist का जो tag होता है, that is being taken seriously. So what do you have to say on that? यार आई थिंक अभी भी मतलब जिनको नहीं लेना होता सीरियसली वो नहीं लेते हैं. अब जिनको लेना होता है वो लेते हैं. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. So if you have to like talk to a parent of a young girl right now who might be watching this Yeah. interview, is there any advice you'd like to give them? सो आई ऑलवेज से दैट आई फील जो पेरेंट्स का वो जो डर होता है ना वो कंसर्न से ही आता है कि दे डोंट वांट टू सी यू